Hello dear students, in this video I am going to explain you a poem The School Boy which is written by William Black. In this poem the school boy is an unhappy child. He is unhappy why? Because he don't like to go to school. He compares himself to a bird that live in a cage or with a wither plant when he is in school. So let's see the poem. The schoolboy. I love to rise in a summer morn when the birds sing on every tree. The distant huntsman winds his horn, and the skylark sings with me. Oh, what a sweet company! So, here summer morn means summer morning, and huntsman means hunter, winds means to blow. Winds means to blow, फूकना. And horn is a type of musical instrument. हॉर्न एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम फूक के बजाते हैं. एंड स्काईलार्क इज अ नेम ऑफ अ बर्ड एंड कंपनी मीन्स फ्रेंडशिप. In first stanza, poet describes the happiness of a young boy. He says that this boy likes to rise, likes to wake up in a summer morning, and he likes to hear the song of bird who are singing on tree. जो छोटा बच्चा है वो सुबह उठना पसंद करता है और बर्ड्स की चिरपिंग या बर्ड्स का सॉन्ग सुनना पसंद करता है, जो बर्ड्स ट्रीज़ पे बैठ के चिर्प करती है या गाना गाती है. फर्दर ही सेज दैट ही ऑल्सो लाइक्स टू हियर द हॉर्न, द साउंड ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज़ प्लेड बाय द हंटर एट सम डिस्टेंस. बॉय ये भी कहता है कि उसे जो हंटमैन है उसके म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ सुननी भी बहुत पसंद है. अगेन बॉय सेज दैट ही ऑल्सो लव टू हियर द सॉन्ग ऑफ स्काईलार्क बर्ड who is singing along with him. And then at last the boy says that he likes all this company. समर मॉर्निंग, बर्ड्स के साथ रहना, हंट्समैन के म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ सुनना, स्काईलार्क बर्ड की चिरपिंग सुनना, ये सारी चीज़ें बच्चे को बहुत पसंद है. सेकेंड पैराग्राफ. बट टू गो टू स्कूल इन समर मॉर्न, ओ इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे. अंडर अ क्रूअल आई outworn, the little ones spend the day in sighing and dismay. So meaning of drives is to take away. Drive का meaning है take away. Cruel means unkind. Outworn means old fashioned. Sighing means taking a deep breath. And dismay means sadness. Second stanza present the exact opposite things that drive all joy away. Second stanza में एकदम opposite बातें कही है जो स्कूल बॉय है उसकी जितनी खुशियाँ हैं उससे वो छिन जाती है. कैसे छिन जाती है ये सेकंड स्टैंजा में लिखा हुआ है. तो पोएट इज सेइंग दैट द स्कूल बॉय इज़ फोर्स्ड टू गो टू स्कूल. And when he goes to school, when he went to school, he feels very unhappy there. In school, he is feeling very unhappy because it takes away all joy and happiness from him. छोटे बच्चे को स्कूल में जाना बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसकी सारी खुशियाँ स्कूल जाके छिन जाती है. वो वहाँ पे बिल्कुल भी अनहैप्पी फील करता है. द चाइल्ड स्पेंड हिज टाइम वेरी सैडली इन द स्कूल एंड ही हेटेड स्पेंडिंग हिज डे
अंडर द सुपरविज़न ऑफ अ स्ट्रिक्ट टीचर, और वो स्कूल जाना उसे पसंद नहीं है। वो सारा दिन एक स्ट्रिक्ट टीचर के सुपरविज़न में रहता है, ये भी उसे पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है? बिकॉज द बॉय इज़ फोर्स टू डू अकॉर्डिंग टू द टीचर्स एक्सपेक्टेशन। क्यों पसंद नहीं है? क्योंकि टीचर्स के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से बच्चे को काम करना पड़ता है स्कूल में, तो इसीलिए बच्चे को स्कूल जाना पसंद नहीं है। एंड दस ही स्पेंड एंटायर डे इन सैडनेस एंड डिस्ट्रेस, और इसीलिए वो पूरा दिन दुखी होके बिताता है। जब बच्चा स्कूल जाता है तो स्कूल में टीचर्स के स्ट्रिक्ट सुपरविज़न में रहना पड़ता है उसे। उसी ओल्ड फैशन तरीके से जो टीचर पढ़ा रहा है उसी तरीके में उसे भी पढ़ना पड़ता है, और इसीलिए वो बहुत ही दुखी हो जाता है। देन थर्ड स्टैंजा, then it's times I drooping seat and spend many an anxious hour, nor in my book can I take delight, nor sit in learning bar, worn through with the dreary sour. So here drooping means stop doing something, and anxious means worried. Then bower means shady area under a tree. Worn means tired, dreary means dull, and shower means light fall. Third stanza show how the boy gets frustrated by the boring teaching method adopted by the school. In this stanza, boy says that he is very much tired and very frustrated because he has to spend long hours sitting at one place. He neither enjoy reading book inside the classroom, nor does he like to sit for learning under a tree. Why? Because everything was taught in an extremely dull way. थर्ड स्टैंजा में बच्चा बोलता है कि उसे स्कूल जाने से बहुत ही फ्रस्ट्रेशन फील होता है, बहुत ही टायर्ड लगता है, क्योंकि एक ही जगह पे उसे बैठे रहना पड़ता है, एक ही क्लासरूम में बैठे रहना पड़ता है, एक ही सीट पे बैठे रहना पड़ता है, और वो इसी कारण वो एकदम इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है कि उसे ना तो बुक पढ़ने में इंटरेस्ट आती है, ना ही उसे रीडिंग में इंटरेस्ट आती है, और ना ही उसे बाहर जाके किसी ट्री के नीचे बैठ के कुछ लर्न करने में इंटरेस्ट आता है, क्योंकि टीचर का जो टीचिंग मेथड है स्कूल में वो बहुत ही बोरिंग है। Fourth stanza, how can the bird that is born for joy sit in a cage and sing? How can a child when fears annoy but droop his tender wing and forget his youthful spring? So annoy means angry and droop means to bend. So in fourth stanza the poet compares himself with a bird. Poet अपने आप को bird के साथ compare करता है, एंड स्कूल विथ अ केज, और स्कूल को केज के साथ कंपेयर करता है। ही सेज दैट एज द बर्ड हु इज टू बी जॉयस एंड स्प्रेड हैप्पीनेस थ्रू हिज सिंगिंग कैनॉट सिंग इन द केज इन अ सेम वे ही कैनॉट एन्जॉय हिज चाइल्डहुड इन द स्कूल। तो यहाँ पे पोइट कहते हैं कि जैसे किसी बर्ड को हम केज में कैद कर देते हैं तो वो खुल के नहीं जी पाती है, खुल के गाना नहीं गा पाती है, खुल के चिरपिंग नहीं कर पाती है, तो वैसे ही जो स्कूल बॉय है जब स्कूल में जाते हैं, स्कूल में होते हैं, तब उन्हें प्रिजन जैसा महसूस होता है। ऐसा लगता है उनको जैसे किसी ने कैद कर लिया हो, प्रिजन में डाल दिया हो, जेल में डाल दिया हो, तो वो वहाँ पे खुल के नहीं जी पाते हैं, खुल के एंजॉय नहीं कर पाते हैं। पोइट सेज दैट चिल्ड्रन आर अफ्रेड ऑफ टीचर। पोइट बताते हैं कि वो खुल के क्यों नहीं जी पाते, क्यों नहीं एंजॉय कर पाते, क्योंकि उन्हें टीचर का डर होता है कि टीचर उन्हें कहीं डांट ना लगा दे।
They feels themselves as a prisoner in school. Like in a case, the bird droop its tender wing. In the same way, children also forgets to enjoy their youth day in young age. तो फिर पोइट कहते हैं कि बच्चों को स्कूल में प्रिजन जैसा महसूस होता है. उनको ऐसा लगता है कि वो जेल में है, क्योंकि उन्हें टीचर बहुत ही स्ट्रिक्ट सुपरविज़न में रखते हैं, बहुत स्ट्रिक्टली उनके साथ बिहेव करते हैं. तो उनको ऐसा लगता है कि वो प्रिजन में है. और जैसे बर्ड को अगर प्रिजन में रखा जाए तो वो उड़ना भूल जाती है. अगर प्रिजन जो भी बर्ड अगर केज में अगर उसे आप बाहर भी निकाल देते हैं तो वो उड़ नहीं पाते हैं ठीक से. जैसा कि बाहर में जो बर्ड उड़ते हैं उनके मुकाबले ये बर्ड जो केज में थे वो नहीं उड़ पाते हैं. तो उसी तरह से जो बच्चे बहुत ही स्ट्रिक्ट सुपरविज़न में होते हैं टीचर के, तो उनसे हम उनको स्ट्रिक्ट सुपरविज़न में रख के उनका हम बचपन छीन लेते हैं. नेक्स्ट, फिफ्थ स्टैंजा. ओ फादर एंड मदर, इफ बर्ड्स आर निप्ड एंड ब्लॉसम्स blown away, and if the tender plants are stripped of their joy in the springing day, by sorrow and care's dismay. So nipped means destroy और stripped means क्या होता है, छीन लेना. blossoms का मतलब होता है flower. In last stanza, boy compares his growth and development with nature. Boy addresses his parents and appeal from them that they should not harass their child. बॉय यहाँ पे अपने पेरेंट्स से अपील करता है, रिक्वेस्ट करता है कि वो अपने बच्चों को हैरेश ना करे, ओवर बर्डन ना करे. क्यों? बिकॉज दे आर वेरी सेंसिटिव, दे आर वेरी डेलिकेट, दे आर वेरी टेंडर. बहुत ही नाजुक होते हैं बच्चे, इसीलिए उन्हें ओवर बर्डन में कभी नहीं रखे पेरेंट्स, उन्हें हैरेश नहीं करे. एंड वो बहुत ही कोमल होते हैं, बहुत ही नाजुक होते हैं. लाइक बर्ड्स एंड फ्लावर, जैसे बर्ड्स और फ्लावर नाजुक होते हैं, उसी प्रकार ये बच्चे भी बहुत ही नाजुक होते हैं और मन के भी वो बहुत भोले होते हैं. सो इफ़ दे आर ओवर बर्डन दे विल ग्रो अनहैप्पीली. अगर उनको ओवर बर्डन किया जाए, बहुत सारा काम बचपन में ही दे दिया जाए, उन्हें खेलने ना दिया जाए, तो वो अनहैप्पीली ग्रो करेंगे, क्योंकि उन्हें उन काम को पूरा करने की चिंता हमेशा उनके मन में लगी रहेगी और इसीलिए वो अनहैप्पीली ग्रो करेंगे. जैसे इफ़ बर्ड वर निप्ड, मतलब कि अगर बर्ड को, कली को, BUD बर्ड मीन्स कली, कली को अगर हम डिस्ट्रॉय कर देंगे, देन द ब्यूटी एंड फ्रेगरेंस ऑफ फ्लावर विल नॉट स्प्रेड. तो अगर हम बर्ड को ही, अगर हम कली को ही डिस्ट्रॉय कर देंगे तो न फूल खिलेगा और ना ही उसकी महक चारों तरफ फैलेगी. वैसे ही एक और एग्जाम्पल देते हैं पोएट यहाँ पे. कहते हैं कि अगर प्लांट, इफ़ प्लांट्स वर डिस्ट्रॉयड, अगर हम प्लांट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, व्हेन दे आर टेंडर, जब वो नाजुक होते हैं, जब वो छोटे होते हैं, बेबी प्लांट होते हैं, तभी अगर हम उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे, देन स्प्रिंग वुड नॉट बी अ हैप्पी ओकेज़न फॉर देम. तो स्प्रिंग सीज़न जो कि बहुत ही फेमस होता है, स्प्रिंग सीज़न जब आता है तो चारों तरफ प्लांट हरे भरे दिखते हैं, उनमें फूल खिल जाते हैं और पूरी हवा खुशबू से महकती रहती है. तो अगर हम उन प्लांट को, अगर जब वो छोटे हैं तभी हम उनको अगर डिस्ट्रॉय कर दें, अगर हम तोड़ फोड़ दें, तो स्प्रिंग आने के बाद भी ना वो हरा भरा दिखेगा, ना ही उसमें कोई फूल लगेगा. तो इसीलिए बॉय अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट को यहाँ पे नेचर से कंपेयर कर रहा है, बर्ड्स और फ्लावर से कंपेयर कर रहा है. देन दिस लास्ट टू लाइन, हाउ शैल द समर अराइज इन जॉय और द समर फ्रूट्स अपीयर्स.
In these two lines, poet says that if everything is destroyed before its time, then bird would not bloom into flower or plant would not be alive. Then how can we get fruit? How we will be happy during summer or spring season? We can't be happy. इन लाइन में पोइट कहते हैं कि अगर हम बर्ड को ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं, अगर हम कली को ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं, अगर हम फ्लावर प्लांट को ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो न फ्लावर खिलेंगे, ना ही फ्रूट होगा और ना ही हमें कोई फ्रूट मिलेगा, ना ही कोई सुगंध मिलेगा, ना ही फूल देखने को मिलेंगे। तो हम न समर में खुश हो पाएंगे और ना ही स्प्रिंग में खुश हो पाएंगे। सो जस्ट लाइक flower or plant need right atmosphere for growth and become a thing of beauty or spread beauty and happiness. In the same way, a child also require love, care, affection, freedom to become a good person. जैसे कि फ्लावर्स प्लांट को राइट एटमॉस्फेयर चाहिए ग्रो होने के लिए या फ्रूट देने के लिए। अगर फ्रूट उसमें फल लगते हैं, अगर फूल लगते हैं तभी वो ब्यूटी स्प्रेड कर सकते हैं, सुगंध चारों तरफ फैला सकते हैं। उसी तरह जैसे फ्लावर्स प्लांट इन सबको चाहिए प्रॉपर एटमॉस्फेयर, वैसे ही एक बच्चे को भी प्रॉपर एटमॉस्फेयर चाहिए, प्रॉपर लव केयर अफेक्शन चाहिए, प्रॉपर फ्रीडम चाहिए, तो ही वो एक खुश रहने वाला एक अच्छा व्यक्ति बन सकता है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पोएम। थैंक यू।